Welcome back, boys. Today we are going to start the Wheatstone Bridge and its principle. Now, Wheatstone Bridge is a bridge which is in the form of quadrilateral in which four resistances are arranged to form four sides of the quadrilateral. Now, it is given a name like that. It was invented by the scientist Wheatstone. That's why it is given a name of Wheatstone Bridge. Now, in this Wheatstone Bridge, there are four resistances PQRS, and these four resistances are arranged such that they form four sides of the quadrilateral, and this combination is connected with a cell and a key. So, across one diagonal, galvanometer is attached, and across other diagonal, cell is connected with a key. Now, if current I is supplied by the cell, then current I1 moves along this loop and current I2 moves along this loop, and current through galvanometer is Ig. This point is A, this is B, this is C, this is D. Now these are four arms, and this is P, this is Q, this is R, this is S. Or you can take vice versa, क्योंकि रिजल्ट वही आएगा जो बुक में दिया है. यहाँ पे पी क्यू दिया है और यहाँ पे दिस इज पी क्यू, दिस इज आर एंड एस. So in galvanometer, when it is attached across one diagonal and cell is attached across other diagonal, then galvanometer shows deflection in either side, क्योंकि galvanometer का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ऐसे होता है. ठीक है, गैल्वनोमीटर का कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, यानी सेंटर पे होता है इसका जीरो मार्क. अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो इसका डिफ्लेक्शन इधर होगा, और अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो इसका डिफ्लेक्शन इधर होगा. ठीक. अब गैल्वनोमीटर ये चारों रेजिस्टेंस हैं, और ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है टू फाइंड एनी वन ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस. यानी कि आपका पी क्यू आर एस में से रिमेनिंग थ्री आपको पता होंगे और कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकाली जाएगी. अब देखिए, ये ब्रिज बैलेंस तब कहलाता है जब करंट थ्रू गैल्वनोमीटर इज जीरो. इट मीन्स इट इज इन द स्टेट ऑफ null point condition, that is when no current flows in the circuit. तो यानी अगर इसके क्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तो ये करंट यहां से चली जा रही है, ये करंट यहां से चली जा रही है, एंड वी विल फाइंड द कंडीशन फॉर बैलेंस इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज. अब जो बुक्स में डेरिवेशन किए हैं, मान लीजिए करंट I1 यहां से Ig यहां तक आ रही है, तो यहां क्या हो गया, I1 माइनस Ig हो गई. ये करंट I2 यहां से आ रही है, Ig यहां से आ रही है, तो ये I2 प्लस Ig हो गई. दोनों लूप लिया उन्होंने, लास्ट में कहा Ig इज जीरो. So either you can consider Ig initially zero, or you can consider Ig in the latter condition to be zero. Now if you consider Ig initially to be zero and the current through galvanometer is zero, then we say that this bridge is balanced. If the current through galvanometer is zero, we say that this bridge is balanced. And now we find out the condition for balance in the Wheatstone bridge. Now we
take two mesh, that is this is mesh 1 and second mesh 2. Now in mesh 1, that is loop A D B A, one यही हुआ A D B A, and apply the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, that is here the if we start from this point and move along this, that is I1 into P, अब यहां आए, यहां से इसके क्रॉस कोई करंट नहीं है, यहां रिवर्स गए, अब यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स I2 R, और EMF कितनी, कोई सेल लगी है नहीं, तो EMF 0 होगा. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ वी कैन राइट I1P is equal to I2R. This is second. Now come in the second loop, that is in second loop, that is this is DCBD. Now in this loop, if we start from this point, then here in this loop the direction of current and direction of traversal is same, so we can, and this is current I1 again, because here we have considered that Ig is 0. Now initial condition for this is Ig is 0, और अगर आप Ig 0 नहीं करते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको दोनों इक्वेशन लिखने के बाद हम कह देते हैं कि अंडर द बैलेंस कंडीशन द गैल्वेनोमीटर करंट इज 0. तो चाहे आप वहां जाके लिखें या यहां पे इनिशियली ले दें, लिखें Ig is equal to 0 अंडर द बैलेंस कंडीशन, दोनों बातें हैं. नाउ हियर वी कैन राइट I1, दिस इज I1, और ये रेजिस्टेंस कितना है Q, यहां आए C तक, उसके बाद यहां आए, यहां पे I2 है, I2 का डायरेक्शन ये है, हमारा ट्रेवर्सल डायरेक्शन ये है, माइनस I2 S is equal to 0, this is third, or we can say I1Q is equal to I2S, this is fourth. Now dividing second and fourth, divide second by fourth, तो second by fourth क्या हो जाएगा, I1P upon I1Q is equal to I2R upon I2S. I1 इधर कैंसिल हो गया, I2 इधर हो गया, बचा गया, this is P by Q is equal to R by S. This is equation 5, and this is required condition for the balance in a Wheatstone bridge. यानी ये ब्रिज तभी बैलेंस्ड होगा जब रेशियो ऑफ P by Q is equal to ratio of R by S. Then only current in this branch will be 0. अब इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए P by R is equal to Q by S. P by R is equal to Q by S. अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं, इनका दोनों का जो रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, then also this is bridge is said to be balanced. इसीलिए जब हमने यहाँ पर नाम अलग लिखा था तो ये आपसे बोला था कि रिजल्ट वही आना है. तो अगर हम यहाँ Q लेते हैं, यहाँ P लेते हैं, यहाँ R लेते हैं, यहाँ S लेते हैं, तो ये वाला आ जाएगा पहले, और अगर यहाँ पे हम P Q R S लेते हैं तो ये आ जाएगा. अब क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है कि हम जो है इन चार रेजिस्टेंसेस में यानी P Q R S में कोई 3 रेजिस्टेंसेस नोन होते हैं. The 3 resistances out of 4 resistances in this formula are known, and we find out the remaining one.
हम चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं और इस पे बेस्ड एक जो एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज एंड इन केस ऑफ मीटर ब्रिज वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज to find out the resistance and resistivity of the given wire. Clear? So this is condition for balanced in Wheatstone bridge. अब देखिए कि ये एडवांटेजेस क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा बैलेंस्ड होता है ब्रिज तो उस कंडीशन में करंट इस ब्रांच के क्रॉस जीरो है, यानी जितनी करंट यहां से जा रही है वही इसके क्रॉस भी जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली नल पॉइंट बेस्ड है। नल पॉइंट बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से कोई करंट यहां को नहीं फ्लो कर रही है या यहां से कोई करंट यहां को नहीं फ्लो कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स बी एंड डी आर ऑन द सेम पोटेंशियल। पॉइंट्स बी एंड डी आर ऑन द सेम पोटेंशियल। तो जब दोनों एक ही पोटेंशियल पे होंगे तभी तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। अब उनके सेम पोटेंशियल पे होने की रीजन क्या है, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप P के क्रॉस हो रहा है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप R के क्रॉस हो रहा है और ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं इनके। तो बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है वो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका एडिशन होगा। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q। जितना P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस है उनका एडिशन V के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की। ये ब्रिज कब मैक्सिमम सेंसिटिव होता है? ये मैक्सिमम सेंसिटिव तब होगा जब इसके चारों रेजिस्टेंस यानी P, Q, R, S ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस और ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अगेन, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 से 10 के बीच में ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको आप 2 ले लें, इसको 3 ले लें, इसको 4 ले लें और इसकी वैल्यू निकालें। बहुत छोटा तार आपने लगा दिया, उसका रेजिस्टेंस डेसिमल में आ रहा, तो सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी। ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियर? तो ये बेसिक्स हुए व्हीटस्टोन ब्रिज का। दैट इज Wheatstone, this is a Wheatstone bridge, stone bridge and its principle. Wheatstone bridge and its principle. Clear? So these are few points which are essential for everyone to know about the concept of Wheatstone bridge and its balanced condition. Now then we come to the application of this principle. Application of this principle, and one of the devices which is made using this application is meter bridge. Meter bridge is a device in which there is a 1 meter wire fixed on the wooden board in parallel to the meter scale, and there is a central point on parallel to the wire across which the galvanometer is connected. I will make the diagram, then it will be clear. अब क्वेश्चन ये होता है कि मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we should draw the diagram, then we should start the concept of meter bridge and estimate how the resistance and resistivity using meter bridge is obtained. So let us see the diagram. Okay boys,
This is the diagram for the meter bridge. And see what are the elements. I will explain once, and you have one experiment based on this. So these are the two connected points, that is this point and this point. This is a central point. ये एक वायर होता है ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसीलिए इसको 100 माइनस एल किया गया है. अब मान लीजिए ये सेंट्रल पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, और इस गैल्वेनोमीटर को, ये इस पॉइंट को हम इस वायर पर स्लाइड करते हैं, और जिस पॉइंट पर हमको गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट 0 मिल जाती है, दैट इज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, we say that bridge is balanced at that point. अब इसमें हमको क्या निकालना है? We have to find the resistance S. We have to find the value of resistance S, and its length is L डैश. इसकी लेंथ हमने जो ना एक ऐसा वायर लिया है जिसकी लेंथ L डैश है, इसका रेजिस्टेंस निकालना. ठीक. अब यहां RB है. RB मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स. हम करते क्या है कि पहले हम इसको कनेक्ट किया यहां इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. ये गैप होते हैं, ये जो दिख रहा है गैप होता है, और इसी वायर के पैरेलल एक मीटर बीच भी एक मीटर स्केल फिक्स होती है. 1 मीटर स्केल इज फिक्स पैरेलल टू दिस वायर, जिससे हम इसकी लेंथ मेजर कर सकें. अब आरबी से क्या करते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक रेजिस्टेंस, डेफिनेट फाइनाइट रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं. जैसे मान लीजिए हमने 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ इंसर्ट किया, वी इंसर्टेड 1 ओम रेजिस्टेंस. जब 1 ओम रेजिस्टेंस हमने इंसर्ट किया, तो उसके बाद हम इस वायर पर सर्च करेंगे कि नल पॉइंट हमें कहां मिल रहा है. हम उसी पॉइंट पर रुक जाएंगे. इस ए एंड से, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जो लेंथ होगी वो एल होगी, और नेगेटिव टर्मिनल से जो लेंथ होगी वो 100 माइनस एल होगी. हमने इस यानी एओ का रेजिस्टेंस पी मान लिया है, और ओबी का रेजिस्टेंस क्यू ले लिया है. तो ये पी क्यू हो गया एक आर, और 2 आर्म ये हो गई, और आर एस 2 आर्म ये हो गई. देयर आर 4 आर्म्स. अब इस मीटर ब्रिज में जो वर्क कर रहा है, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, एंड देयर आर 4 आर्म्स ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज. 2 आर्म्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और 2 आर्म का काम कर रहे हैं ये वायर्स पी एंड क्यू. अब पी और क्यू कैसे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है वो देखिए. P by Q is equal to what? Resistance of this AO upon resistance of this OB. यही तो हुआ. अब रेजिस्टेंस ऑफ AO और OB क्या होंगे? रेजिस्टेंस ऑफ AO को हम लिख सकते हैं रो L अपॉन ए, और रेजिस्टेंस ऑफ ओबी को लिख सकते हैं रो 100 माइनस एल अपॉन ए, क्योंकि यहां लेंथ क्या है? एल है, और इसकी लेंथ क्या है? 100 माइनस एल. हमने रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला लगाया. ठीक. अब रो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ ए बी. इसीलिए कहते हैं मीटर ब्रिज में जो वायर लेते हैं, इट शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म मटेरियल, यानी एक ही मटेरियल होना चाहिए. एक मटेरियल होने से क्या होगा? रो कांस्टेंट होगी, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेगा नहीं. इसको हम लिख सकते हैं एल अपॉन 100 माइनस एल, यानी पी बाई क्यू को. अब यहां R, इसको हम ले लें R बाई एस निकालते हैं. R बाई एस इज इक्वल टू P बाई क्यू इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल. ये तो बेसिक इक्वेशन हुआ. P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस.
P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। ठीक, अब यहां हम ये लिख सकते हैं कि दैट इज R बाई S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, और R हमको पता है क्योंकि यहां हमने इंसर्ट किया रेजिस्टेंस बॉक्स से। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S, दैट इज S इज इक्वल टू R into 100 minus L upon L. R, S is equal to R into 100 minus L upon L. So this is final expression, क्योंकि L आप यहाँ क्लियर हो जाएगी, 100 minus L यहाँ से क्लियर हो गई, R की वैल्यू आप यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, you are inserting from the resistance box, so value of R is known. You can calculate the value of S, that is the value of resistance of this material. So the resistance is S of the material is, or the resistance S of the wire is R into 100 minus L upon L. This is the method of finding the resistance by meter bridge. मीटर ब्रिज से रेजिस्टेंस निकालने का ये तरीका है। ठीक, एंड नेक्स्ट पार्ट जो एक्सपेरिमेंटल आता है, हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सेम वायर, यानी जिसका रेजिस्टेंस आपने निकाला उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि उसकी लेंथ हमने क्या ले रखी, एल डैश। एल डैश इस वायर की, एस वायर की लेंथ कितनी है, एल डैश है। अब टू कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, यही होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, वी कैन फाइंड आउट दैट इज S इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, L डैश अपॉन ए। S क्या है, उसका रेजिस्टेंस निकला, और L डैश क्या है, उसी वायर की लेंथ है, रो हम निकाल रहे हैं, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हम रो को लिख सकते हैं S इंटू ए अपॉन L डैश। एस ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहां से। अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हम स्क्रू गेज से इसका डायमीटर निकालते हैं, दैट इज वी फाइंड द डायमीटर बाय यूजिंग स्क्रू गेज, एंड देन वी calculate the radius, and thereafter we calculate the area of cross section of the wire. Now if R is a radius, then we can say S into pi R square upon L dash, और हमने रेडियस को अगर सेंटीमीटर में लिया, लेंथ को सेंटीमीटर में लिया, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम सेंटीमीटर। यूनिट इसकी क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। अगर यहां पर रेडियस को हम मीटर्स में लेंगे, लेंथ एल डैश को मीटर्स में लेते, तो हम लिखते ओम मीटर्स। तो दिस इज द मेथड हाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कैलकुलेटेड। पहले हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने के बाद, यानी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि चेक करने के लिए वेदर दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। उसके लिए आप इस गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल को सबसे पहले एक एक क्लोज टच कराइए। एक एक क्लोज जब टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन वन साइड होगा, और अगर आप उसी टर्मिनल को यहां ले आए, उसी टर्मिनल को यहां ले आए, तो अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इफ गैल्वेनोमीटर इज शोइंग डिफ्लेक्शन इन टू अपोजिट डायरेक्शंस near the points A and near the point B, then it means that our experimental setup is working correctly. इसका मतलब क्या होगा कि बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, एंड डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज 0। क्लियर? तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर ऐसा नहीं आ रहा है, यानी एक ही साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आप पहले टर्मिनल चेक करेंगे
कि कोई अगर आर्म, जैसे मान लीजिए यहां सही नहीं है, यहाँ सर्किट कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ जंग लगा हुआ है, यहाँ कॉपर वर्टिक्स लगी हुई है, तो क्या हुआ, यहां से करंट फ्लो नहीं करेंगी। इस अगर गैप हुआ, अगर इस पॉइंट पर गैप है, तो गैप का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। गैप मीन्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। उस केस में भी ये सर्किट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। वही चीज यहां भी है, वही यहां पे भी है, यानी सर्किट शुड बी कंटिन्यूअस। और इस चीज को चेक करने के लिए वी यूज मल्टीमीटर टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट्स हो गए जिन पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि यहां से पता चला इस वायर का जो रेजिस्टेंस लिया है वो 20 सेंटीमीटर का वायर ले लिया हमने, या हमने 100 ओम निकाल दिया। तो भाई जब सारे रेजिस्टेंस, अगर ये इसका रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम होगा, तो यहां हमको उसी ऑर्डर में रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है? अब जो ये वायर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वाई व्हाट इज द टाइप ऑफ वायर्स विच आर टेकन फॉर कंस्ट्रक्टिंग मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में कौन से वायर यूज किए जाते हैं? देन करेक्ट आंसर इज दीज आर एलॉयस। एलॉय होते हैं बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। यानी टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रेसिस्टिविटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता है। आपने देखा होगा कि एलॉयस की रेसिस्टिविटी का जो ग्राफ होता है दैट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? आप ये स्विच ऑन रखेंगे, जब आप स्विच ऑन रखेंगे तो ये वाले सर्किट तो हमेशा कंप्लीट है, यानी वायर ए बी से करंट तो हमेशा फ्लो हो रही है। जब करंट फ्लो हो रही है, इसका एक डेफिनेट रेजिस्टेंस है, एक डेफिनेट इसका रेजिस्टेंस है, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर ये नॉर्मल वायर होगा तो इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेसिस्टिविटी बढ़ेगी जिसका मतलब क्या हुआ, किन्हीं 2 कंडीशंस के लिए पैरामीटर्स यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं रहे। These parameters are not constant. So we can say that these are the alloys, और alloys के नाम कौन कौन से होते हैं? Constantan, manganine and eureka. These are 3 alloys. You will check it, their compositions on the net. These are 3 alloys: Constantan, manganine and eureka. These are 3 wires which are used for the wires of potentiometer एंड मीटर ब्रिज। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है एक प्रैक्टिकल के वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक बार जैसे आपने इस गैप में, जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, एक बार आपने इस वायर को इस गैप में जोड़ा, इस आरबी को यहां कनेक्ट किया। अगले वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, इस वायर को यहां कनेक्ट कर देते हैं और आरबी को यहां ले आते हैं। ठीक है? वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस वायर एस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी। देन अगेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। नाउ वी टेक द मीन वैल्यू ऑफ द two values of s obtained in 2 different cases, and that is mean value of resistance of wire s. Clear? So this is the method to find out the resistance and specific resistance of the wire using meter base. अब यही concept यूज होता है कभी कभी to find out the equivalent resistance of the circuit. जैसे we will take one example. So we have concluded this. Now we are having the applications of this. For example, if there is a circuit like this,
अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, क्योंकि यहां भी एक रेजिस्टेंस है। अब पहले चेक करें, इस तरह के क्वेश्चंस में पहले चेक करते हैं कि वेदर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S और नॉट। तो P क्या हुआ, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। तो P बाई Q कितना हुआ, 10/5 दैट इज 2। R बाई S कितना हुआ, 50/25 दैट इज 2। Again we are getting to this resistance is 100। अब जब ये ब्रिज बैलेंस है, तो ये अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये ब्रिज बैलेंस है। नाउ इफ दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन सर्टेनली करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस मींस I100 इज इक्वल टू 0। इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं, करंट नहीं फ्लो कर रही। व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, then this resistance can be deleted from the circuit। जब इसके अक्रॉस कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब इसका एक टोटल रेजिस्टेंस में कोई रोल ही नहीं। और वो क्यों हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जब सेम पोटेंशियल पर होंगे, देन ओनली द करंट थ्रू दिस नेटवर्क विल बी जीरो, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू V बाई R। क्या हुआ, इफ V इज 0 अपॉन R इज 0, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, देन 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के लिए क्या है, ये और ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल्स पर होने चाहिए, तभी इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। सो these are few cases where this principle is applied। So if the question is given in this form, then first of all you must check that whether P by Q is equal to R by S or not. If it is equal to R by S, P by Q is equal to R by S, then we simply apply the principle of Wheatstone bridge। And if it is not equal to, that is P by Q is equal to R by S, then we have to take current through this resistance, that is Ig, bifurcate the current, apply junction rule, apply Kirchhoff's law in both the loops, then calculate the value of I1, I2 and I3। And there is one question given in NCERT in which the values of resistances are given as 5 and 10 on the arm. It seems to be balanced, but it is not exactly balanced। You can check that question, and there you have to take some current through this resistance। जैसे मान लीजिए यहाँ से करंट I1 गई, यहाँ से I2 गई, यहाँ करंट Ig गई, तो इसके क्रॉस करंट क्या हो गई, इससे I1 माइनस Ig, और इसके क्रॉस करंट क्या हो जाएगी, I2 प्लस Ig। अब एक लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, तीसरा लूप आप यहां से ऐसे ले सकते हैं, यू कैन टेक लूप लाइक दिस, या ये छोड़ के आप यहां से ये वाला ले सकते हैं, बड़ा लूप ले सकते हैं, या इसको छोड़ के आप इसके क्रॉस पूरा लूप ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी क्लोज्ड पाथ, उसके बीच में रेजिस्टेंस लगे हैं नहीं लगे हैं, दैट हार्डली मैटर्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। So please practice the question based on Kirchhoff's law, the principle of Wheatstone bridge, and the questions related with the meter bridge. There are very good questions given in the different reference books based on meter bridge, and they are asked usually in board exams. So better practice it. You have enough time. Thanks and have a good day.